Hello everyone, welcome back to my channel. I am Tulip and I secured All India Rank 3000 in NEET 2025 and I secured 94% in my 12th boards. So in this video, I'll be telling in detail about my timetable, what I did, because there were so many comments that came that explain your timetable that you have shown in your first video, how to revise, how you managed NEET along with boards, how to revise, and so many comments came. So let's start. And this is my timetable that helped me, and what I did, you can take ideas from it, make your own timetable, do not need to copy it, and take the time whatever you feel comfortable with. You want to start whatever in the morning or in the evening. So let's start. So first of all, as you can see, this is my timetable. I made it in around Feb when my boards were coming, so I made it to manage my NEET also. So I would wake up at 7 and start studying at 8. So in the morning I would only give 1 hour to whatever I would do in the morning. So first of all, you have to start with your weakest subject and weakest topic. As you can see, I have started with P block, because P block I would feel like it was my weakest subject and I would not remember P box, melting point, boiling point, this order, that order. There are so many things in P block, so I will not remember it. So always start with your difficult subject, whatever you feel difficult or weakest. So mostly you can see whatever in the blue. ये blue में जो भी है ये सब chemistry है. Mostly I have started with chemistry only. Look here. So I've started with P block and I've given it 3 slots. So you have to find your own focus time duration, experiment, and make when you study with a stopwatch. Make note of when you can focus the highest, कि आपका कब तक आप पढ़ पा रहे हैं और उसके बाद आपका कब दिमाग distract हो रहा है. So find your own focus time. 40 minutes worked for me. You can also try with 40 minutes, 30 minutes, 1 hour, whatever you feel comfortable with. And exercise is must for a fresh mind. You have to start strong. So as you can see, I have written exercise here in the morning after waking up. You can exercise, you can go for a jog, walk, whatever you can do. And after that, you have to do a light breakfast and start as early as you can, because you don't want to waste your time. Okay, do breakfast, take a bath, and you can also meditate. You can meditate or pray for 5 to 10 minutes. It helps to calm your nervous system and get you started. You have to calm your mind. So starting is the hardest part. Just start and the thing is half done. You have to start, because स्टार्ट करने में हमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि हम कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, डिफ़िकल्ट होगा, हम कर पाएंगे नहीं. कुछ मत सोचो, जस्ट स्टार्ट करो अपना काम. एंड ये आप देख सकते हो, दिस इज 40 मिनट्स ब्लॉक एंड 8:40 तक. देन आई हैव टेकन अ 10 मिनट्स शॉर्ट ब्रेक. So take 5 to 10 minutes short or small breaks in between. What you can do in your breaks, you can close your eyes, calm yourself, you can meditate, you can take a walk in garden or have a little snack. Okay, and what you don't have to do in your breaks, do not watch any movies or any series, any videos, any distracting things, because it will deviate your mind from the work. It will take longer than 5 minutes. Your break will extend. When you're watching a video, आपने शायद कोई YouTube पे कोई फनी वीडियो खोल ली कि मैं 5 मिनट के लिए ये देख लेता हूँ. So आपका माइंड डेविएट हो जाएगा. आपने सोचा है कि मैं 10 मिनट्स का ब्रेक लूंगा, लेकिन आप जब वीडियो देखें आपको लगा कितनी फनी है, मैं और देखता हूँ, तो आपका जो ब्रेक टाइम है वो भी एक्सटेंड हो जाएगा. आपका माइंड डेविएट हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. वो क्या काम कर रहा था, अब जैसे हम पी ब्लॉक कर रहे थे इस ब्लॉक में, नेक्स्ट ब्लॉक में भी हमें पी ब्लॉक करना है, लेकिन हमारा माइंड डेविएट हो जाएगा. हमने अभी तक जो याद किया, हमने जो रिवाइज करना था, या पी ब्लॉक. इसके बाद जब फिजिक्स शुरू हो रही है, आपको जो शुरू करना है, आप अपना मटेरियल आपको इकट्ठा करना है. ब्रेक में अपनी बुक्स भी इकट्ठी कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर रखा है, पी ब्लॉक के बाद फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज शुरू कर रखा है, तो मैं पढ़ रही हूँ अभी पी ब्लॉक की. मैंने एनसीईआरटी खोल रखी है, कुछ भी मॉड्यूल खोल रखा है, नोट्स खोल रखे हैं. तो अब ब्रेक हो गया, तो आप स्पीड से अपना सामान भी इकट्ठा करें. You can bring your
फिजिक्स बुक्स, नोटबुक्स, क्वेश्चन नोटबुक, रफ नोटबुक आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और यू कैन ऑल्सो डू दैट. सो डो नॉट वेस्ट योर टाइम वॉचिंग मूवीज और एनीथिंग, एंड चेंज द सब्जेक्ट ऑफन. इट हेल्प्स योर ब्रेन टू फोकस एंड कीप्स यू फ्रेश. ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट चेंज करते रहे, अपना टॉपिक चेंज करते रहे. अब देखो मैंने 3 ब्लॉक तक पी ब्लॉक किया, ठीक है. उसके बाद मैं आ गई इलेक्ट्रिक चार्ज पे. एंड दिस इज नॉट कि आपको ये जो भी मैंने लिख रखा है या जो भी आप लिखें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसी वक्त आधे घंटे में या 1 घंटे में आपको पूरा चैप्टर खत्म करना है. ऐसा कुछ नहीं करना. देखो यहाँ पी ब्लॉक है, उसके बाद इधर भी पी ब्लॉक है. आफ्टर सो मेनी डेज, ऐसा नहीं है कि तभी खत्म करना है. यू कैन complete your half chapter or half question bank in one day, do the other half on the next day. ऐसा कुछ रश करने की जरूरत नहीं है कि आप अभी खत्म करो और खत्म नहीं हुआ तो आप निराश हो जाओ. It's nothing like that. So change the subject, change the topic, and let me show you. This is एक minute. So देखो P block, then I have started electric charge, then another time for P block. मैंने ऐसा नहीं किया कि पी ब्लॉक में लगातार ही पूरा करूं, मैं जितना भी कर रही हूँ. बीच में मैंने फिजिक्स कर ली. नेक्स्ट डे मैंने DEF ब्लॉक किया एंड देन एक पेपर दिया, फोटोसिंथेसिस. ऐसा नहीं है कि हमेशा केमिस्ट्री से शुरू करो. यू कैन स्टार्ट विद बॉटनी, बायो ऑल्सो. फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर जैसे मुझे याद नहीं था, आई हैव टू रिवाइज इट, सो मैंने उसको स्टार्टिंग में लिख लिया था. ठीक है. नाउ अब देखो ये आपका हाफ डे इज कम्प्लीटेड, सो देन देयर इज अ लंच ब्रेक. See, and lunch, have your lunch, and if you sleep in the afternoon or you can take a rest as you wish, you can make a slot on timetable. ऐसा कुछ नहीं होता नीट के प्रिपरेशन में that you cannot sleep, you cannot take a break, you cannot rest. Have your lunch, and if you sleep in the afternoon, you can sleep for 1 hour, or how much time you sleep. Have your lunch, and so after lunch कर लिया, रेस्ट कर लिया, you can start with whatever chapter you are doing. जैसे मैंने I was doing aldehyde, so I have written aldehyde also. Or you can change your subject also. जैसे I was doing P block here, I started with evolution or bio part. So you can do like that. Okay, lunch हो गया, then evening second part of the day, start again as only persistent efforts पे. आपको ऐसा नहीं करना दैट यू हैव टेकन अ ब्रेक, फिर आप ब्रेक में ही चले जाएं. कम बैक, स्टार्ट अगेन, बिकॉज यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट. सो दिस इज 2 to 5. आपको मैंने बताया था पहले भी, दिस इज द नीट टाइमिंग थी जो 2025 में शायद आपके टाइम पे भी आई हो, 26 में भी हो सकता है चेंज भी हो जाए. आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लें, क्योंकि जो नीट का टाइम है ना, आप उसी टाइम डेली एटलीस्ट डू 1 पेपर एवरी डे. आप एक पेपर एवरी डे करेंगे तो आपके माइंड को भी ये प्रैक्टिस होगी कि इस टाइम मुझे पेपर करना होता है, मुझे फोकस करना होता है. कुछ लोग जब लंच करते हैं दे स्लीप एट 2 to 5. मैनी स्टूडेंट्स स्लीप एट दिस टाइम. सो हमारी क्लास में काफी बच्चे थे जिनको प्रॉब्लम आ रही थी. वो टीचर से डिस्कस करते थे दैट वी फील स्लीपी व्हेन वी डू अ पेपर और वी कैन नॉट फोकस. तो आप ऐसा कुछ मत करें. अगर इस टाइम आप सोते हैं तो चेंज योर टाइम, चेंज योर रूटीन, प्रैक्टिस योर माइंड टू डू अ पेपर एट दिस टाइम. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन, so that I can prepare my mind for 2 to 5 timing, that I have to focus at this time. I will not sleep. I will sleep before it or after it, because I would also feel sleepy all the day, but I would not sleep at this hour at least. So I have written 2 NEET based mock tests, but you can do at least 1 every day. Even if, and don't do that कि मेरी पूरी ही तैयारी होगी तभी मैं नीट का मॉक टेस्ट दूंगा. ऐसा मत करें. आपकी तैयारी थोड़ी है, हाफ है, यू कैन डू द नीट मॉक टेस्ट सो दैट एटलीस्ट यू नो व्हाट आर माय वीक पॉइंट्स, कौन से क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं या कौन सा चैप्टर अभी तक मेरा प्रिपेयर नहीं हुआ. स्टार्ट विद द पेपर. तो वो उससे आपका चल जाए कि मैं किस चैप्टर से स्टार्ट करूँ, व्हाट शुड आई डू, एंड मेक श्योर टू एनालाइज योर मिस्टेक्स आफ्टर यू गिव एन एग्जाम. सो इट ऑल्सो हेल्प्स यू मैनेज टाइम. टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे. ऐसा ना हो कि नीट वाले दिन ही आप प्रैक्टिस करें 2 to 5 का पेपर कि मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा पेपर. सो आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे रोज, एंड एग्जाम लाइक कंडीशंस में ही पेपर दें. प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ के पेपर दें प्रॉपरली. कोई OMR शीट पे दे सकते हैं आप, ना भी दें OMR शीट पे तो भी
चलेगा, आप लास्ट के मंथ में OMR पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. And after giving a neat mock test, give yourself a break. You deserve it. See, I have given myself a 30 minutes break. I would rest. I would go in my garden, give water to the plants or whatever. Also, a snack break I would take. And in this break, you can also analyze your mistakes, check your paper, what you have done wrong, or you can prepare what chapter I now have to do. You can make your timetable like this. Don't make your timetable just after watching this video. Experiment one day. After watching this video, start experimenting. Whole one day, follow this. आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपको कैसा लग रहा है, आपसे टाइम टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा. उसके बाद अगले दिन आप टाइम टेबल बनाओ कि मुझसे इस टाइम पेपर नहीं हो रहा था, या मुझसे सुबह सुबह केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता मैं सुबह सुबह बायो से स्टार्ट करूंगा. यू कैन मेक टाइम टेबल लाइक दिस. आप ऐसे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके आप टाइम टेबल बनाएं अपना. एक दिन में परफेक्ट टाइम टेबल नहीं बनता और ना वो फॉलो हो सकता है, एंड इट्स ओके. किसी से फॉलो नहीं हो पाता, मुझसे भी ये पूरा फॉलो नहीं हो पाया था, बट ये जस्ट मैंने बनाया था तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे आप बना सकते हैं. ये कलर कोडिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज कलर कोडिंग से आपके माइंड को भी अच्छा लगता है कि ब्यूटीफुल कलर्स देखे. एंड आई हैव ऑल्सो सेग्रीगेटेड, तो मैं देख सकूँ कि केमिस्ट्री में कितना टाइम दिया. एज यू कैन सी, द ब्लू पार्ट इज केमिस्ट्री and the green highlighters are the boards portion. ऐसे आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं. So now we come to the last half or third of the day. Okay, अब हम दिन खत्म होने वाला है, हम शाम पे आ गए हैं. So wait a minute. Now it's 5:30 to 6:10. I've started with the bio part now. You can, do biology or light subject. Switch to botany or zoology often. So yes, ठीक है. ये देखो एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी. देखो मैंने मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी अपने फर्स्ट डे पे लिखा है टाइम टेबल के, क्योंकि मैंने एक लिस्ट बना ली थी ऑफ डिफिकल्ट चैप्टर्स. उन चैप्टर्स की जो मैंने नहीं करे थे, जो डिफिकल्ट लगते थे. मेक अ लिस्ट ऑफ दोज चैप्टर्स दैट यू हैव नॉट रेड येट or not prepared for, or you find these are the difficult chapters. Make a list that wise. Do not make your timetable of serial number wise ki chapter 1 some basic concept of chemistry hai. Don't make it serial number wise. Make it according to your difficulty ki aapko chapter kaise lagta hai. Make a list according to that on a page. Take a page, make a list and divide your chapters like that. So this is morphology और anatomy जो botany के chapters थे, वही मुझे सबसे डिफिकल्ट लगते थे और मुझे वो याद नहीं होते थे. सो आई वुड बी वेरी स्कैर्ड ऑफ देम. आई वुड रीड देम अगेन एंड अगेन. सो दिस इज मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट किंगडम, एंड देयर स्पोर्ट्स. सो ओके, लेट मी शो यू. सो लास्ट what you have to do in last 20 to 40 minutes of the day, you can whatever time you want to end your day. I have ended it like almost 11 o'clock, 10:40. So prepare exclusively for boards at the end of your day. Do boards PYQ, क्योंकि PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं. PYQs of any paper, any exam you are preparing for, PYQs are very very important because they give you an idea about the exam you are going to give, what type of questions are asked. I will tell you about boards कि 5 नंबर के कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो क्या पूछ लेते हैं. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि शॉर्ट नोट ऑन दिस 5 मार्क्स, और कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं शॉर्ट में. ऐसे शॉर्ट 5 क्वेश्चन दे देंगे, व्हाट इज दिस, इसका कलर बताओ केमिस्ट्री में, या इसका फॉर्मूला. ऐसे भी हो जाते हैं, उसमें आपको लॉन्ग नहीं लिखना होता, यू हैव टू राइट शॉर्ट. तो यू गेट आइडिया अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम. प्रैक्टिस थ्योरी क्वेश्चंस, आंसर फ्रेमिंग, रिवाइज द थ्योरी एट दिस टाइम ऑफ द डे. प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स. लेट मी गिव यू सम टिप्स. आप अपनी हैंडराइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस टाइम पे. आप लिख के प्रैक्टिस करें. बोर्ड्स में आपको लिखना होता है पेपर, आप सबको पता है, इट विल बी अ रिटन एग्जाम. सो प्रैक्टिस योर आंसर राइटिंग, फ्रेमिंग क्वेश्चंस. टेक अ प्रीवियस ईयर पेपर, रीड इट केयरफुली, व्हाट इज कमिंग. आप साथ में जब भी पेपर करें ना, पेपर करने का एक तरीका होता है कि उसमें आप लिख लो इस टॉपिक से आया क्वेश्चन, ये इस टॉपिक से आया, तो आपको पता चल सके ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दिस इज गेटिंग रिपीटेड इन मेनी ईयर्स. तो आपको पता चला आपको कैसे प्रिपेयर करना है. बोर्ड्स की तैयारी ऐसी ही होती है. सो एंड फॉर बोर्ड्स
Going to school regularly helps so much. It helped me. Refer to your school notes and guidance from teachers. It is very valuable and important for boards. So it helps a lot. Okay, so you can see boards का timing है. और देखो बोर्ड स्टार्ट हो गए थे ना फरवरी मार्च के अराउंड. ये फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड लिखा हुआ है ना, केमिस्ट्री. हाँ, आप जैसे कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, आपके टेस्ट होते हैं तो टाइम टेबल में लिखें इस दिन मेरा टेस्ट है, जिसमें लिख रखा है आई हैव अ टेस्ट दिस डे ऑन दिस डे. ऑरेंज इज नो, द ऑरेंज हाइलाइटर इज द टेस्ट डे. ये मैथ्स है, इंग्लिश है ये. हाँ, आई ऑल्सो हैड मैथ्स. आई ऑल्सो क्वालिफाइड JEE एडवांस, but it's a different thing. I'll talk about it in later videos. So I also qualified JEE advanced, and this is the maths board, English board, okay, biology. So make also a slot in your timetable कि आपका इस दिन टेस्ट है, तो आप ऐसा मत करो कि मेरा टेस्ट है मैं उस दिन भी पढ़ूंगा. या गिव योर सेल्फ अ ब्रेक ऑल्सो कि उस दिन मेरा टेस्ट है तो उस दिन ठीक है, कम टाइम मिला है तो कोई बात नहीं, मैं उस टाइम का भी अच्छे से यूटिलाइज करूंगा. एंड इन द okay, so your day is ended now for preparing for boards. You can rest, sleep early, wake up early, and as you can see 11 to 7, almost 8 hours of sleep I have given myself. So आप अपने आप को give yourself a good night's sleep, because sleep is very important. कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि नीट की प्रिपरेशन में they don't sleep or they don't focus on their mental health, they don't focus on themselves कि हम सोएंगे नहीं, हम रात को पढ़ेंगे, सोए हुए जल्दी उठ जाएंगे, 4-5 घंटे सोएंगे. ऐसा कुछ नहीं होता. स्लीप अर्ली, वेकअप अर्ली. 8 घंटे की 9 घंटे की आप स्लीप लें. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिन में 24 घंटे ही पढ़ना होता है. जिस भी टाइम पढ़े आप उस टाइम फोकस से पढ़ेंगे तो इट विल हेल्प यू. एक्सक्यूज मी. So remember, there are days when you cannot focus or follow your timetable. So do make a backlog completion slot. So now this is very important. Let me show you. Here you can see this is the backlog portion of. You can see there's so many days. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Around 4 to 8 days I have given myself of backlog. बैकलॉग कंप्लीशन का भी आप अपने आप को यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट. डोंट थिंक कि आपने टाइम टेबल लिखा है, यू हैव टू फॉलो इट कम्प्लीटली कि मेरा कोई बैकलॉग ही नहीं होगा जरूर होगा. इट्स फाइन. गिव योर सेल्फ टाइम टू कंप्लीट योर बैकलॉग ऑल्सो. डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ. अपने आप को बैकलॉग का भी टाइम दो कि मेरा जो कंप्लीट नहीं हो पाया, जो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाई, उसको आप इन दिन फॉलो कर सको. जैसे आपका पी ब्लॉक का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम का नहीं हुआ, KTG नहीं हुआ, या रोटेशन चैप्टर नहीं हुआ, so you can do it here on the backlog days. And also a very important thing, make a slot of doubts also. Here, see, I've given so many slots to doubt. On these days, on these slots, solve your doubts. Ask your teachers or search online or whatever you feel comfortable. आप जैसे भी अपने डाउट सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें. तो देखो इन दिन डाउट सॉल्व करने हैं, और जिस दिन आप क्वेश्चन सॉल्व करें उस दिन अपने आप साइड डाउट्स अलग कर लो, फोटो खींच के रख लो, एक ग्रुप बना लो या एक नोटबुक बना लो. राइट योर क्वेश्चंस इन नोटबुक. आस्क योर टीचर्स और व्हाटएवर, आस्क देम एंड क्लियर. डाउट्स क्लियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ बच्चे डाउट्स नहीं पूछते अपने, दे फील लाइक क्वेश्चन नहीं हुआ उसको छोड़ दिया. नो, मेक अ डिफरेंट नोटबुक ऑफ डाउट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आस्क योर डाउट्स, क्लियर योर डाउट्स, बिकॉज इसी से आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी अपने चैप्टर की. और जो क्वेश्चंस नहीं हो पाए उनको भी आप टाइम दो. आप इन डाउट्स के सेक्शन में उनको पूछो, उनको दोबारा सॉल्व करो घर आके कि ऐसे से था, मुझसे हो रहा है नहीं. ठीक है. फिर जैसे जैसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे ऐसे ऐसे आपकी तैयारी बढ़ती जाएगी. तो दिस इज इट. ओह वेट, ये रह गया स्नैक्स टाइम. I have also given myself a 20-minute break in the day, in the evening of snacks time also. So make your timetable like this. And until next time, signing off and wishing you all the best. Do share your experience in the comments. And if this video helped you in any way, so thank you so much for watching and all the best for your journey.